Hello everyone. In this video we are going to discuss all the essays that are part of your paper 2, and I'm beginning with New Year's Eve, that is written by Charles Lamb. Now what does he do in this essay is he talks about the evening of 31st of December, New Year's Eve, that is the evening just before the first day of the year. He says that it is a time of celebration. People celebrate about every aspect of their life, and whatever is coming in the new year, whatever resolutions they are making, that is the new year is all about. Now he says that for him it is not so much a celebration as a time of deep thinking. That is what he says. He says, of all the sounds and bells, most solemn and touching is the peal which rings out the old year. I never heard it without a gathering up of my mind to a concentration of all the images that have been diffused over the past 12 months. All I have done or suffered, performed or neglected in that regretted time. I begin to know its worth as when a person dies. So at the New Year's Eve, he feels like a person is dying. The year is passing out, but he feels like a person is dying. So much has happened in those 12 months, and he reminisces about all that. Now he says New Year or the New Year's Eve for many people is just a time of celebration. काफी लोग उसको इस तरह से समझते हैं कि एक celebration का time है. They ring out the bells, they do all sorts of things. But he says that it is not so much about that. He says that it is not a time of celebration because it also signals that you are one step closer to death. And he says, I am content to stand still at the age to which I am arrived. I am, my friends, to be no younger, no richer, no handsomer. वो ना ही उससे ज्यादा यंग होना चाहता है, ना ही वो उससे ज्यादा रिच होना चाहता है जो स्पीकर है, और ना ही हैंडसम होना चाहता है. What he says is that I am satisfied at the time I am in, at the age I am in, and he says that I still have time before death and I can make some use of it. So that is the main idea of this essay, that he's saying that he's basically criticizing the typical attitude of looking to the future at the start of a new year. So new year is not about looking at the future. It is not about also, being engrossed in the past, even though he thinks about his past. वो अपने child presence जो child एलिया जो अपने आप को वो imagine करता है, उनके बारे में वो thinking करता है और फिर सोचता है that he has children. He imagines imaginary children and he feels like his own childhood self, जो उसका अपना childhood है, वो ही उसका एक तरह से is his offspring, is his child. वो समझ कर उसको आगे उसको imagine करता है. So that is this is all about. So he says that and he uses image of a Janus from mythology at the end of the essay. He also cites a poem by Mr. Cotton, and which is also titled The New Year at the end of the essay, because he basically believes that New Year is or as much about looking at the past, thinking about the past 12 months as about the future, and living in the present is the main goal. So these kinds of questions you can expect from this essay. You can expect the publication date, or like important lines from the essay can be quoted. So you can read the essay or search for important lines online and you will find some of them. And the basic summary, the basic thematic explanation you should be aware of. Now moving on to the next essay, El Dorado by R.L. Stevenson. This is also an essay that is about a myth. Now this is about a different myth, a myth about a place known as El Dorado. Now throughout the 16th and the 17th centuries, Europeans believed that somewhere in the New World there was a place of immense wealth, immense gold and everything, and that was known as El Dorado. So they went out on explorative searches for this treasure and wasted many, precious years of their lives, and sometimes they even committed suicide because of this plain search for wealth. Now that is the main source of this particular essay. That is the source of this essay and the theme of this essay, that it is a place of riches which one aspires for. Now in this particular essay, जो ये एसेइस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली इक्वेट कर रहे हैं, वो वेल्थ से नहीं इसको रिलेट कर रहे हैं. वो कह रहे हैं एल्डोराडो हमारी अपनी लाइफ में भी कई सारे एल्डोराडोज होते हैं, हमारे अपने डिजायर्स होते हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए, जिनके पीछे हम भागते रहते हैं पूरी लाइफ. That is what it is all about.
unfulfilled desires, unfulfilled dreams, cherished dreams, whatever. तो यही वो ऐसे के बारे में मेन थीम यही कहते हैं कि जैसे हम लोग को लाइफ में लगता है कि जितना ज़्यादा हम अटेन कर सकें वही हमारी लाइफ का गोल है, और यही मतलब अपीयरेंस होता है. On a hasty view, it would seem that the attainment of as much as possible was the one goal of man's contentious life, and yet as regards the spirit, this is but a semblance. So he says that ये एक केवल एक छलावा है, केवल दिखावा है कि हम जितना ज़्यादा हम अचीव कर सकें, जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ सकें. इसमें इंपॉर्टेंट लाइंस भी कुछ इस तरह की हो सकती हैं, जैसे देयर इज ऑलवेज अ न्यू होराइजन फॉर ऑनवर्ड लुकिंग मैन, एंड ऑल्दो वी ड्वेल ऑन अ स्मॉल प्लैनेट immersed in petty business and not enduring beyond a brief period of years, we are so constituted that our hopes are inaccessible like stars, and the term of hoping is prolonged until the term of life. तो जब तक लाइफ रहती है हम कुछ ना कुछ उम्मीद करते रहते हैं, कुछ ना कुछ होप करते रहते हैं. एक चीज हमको मिल जाती है तो हम दूसरे के लिए सोचते हैं, एक स्टेज हम कंप्लीट कर लेते हैं तो दूसरे के लिए तैयारी करते हैं. एस्पिरेशंस हमेशा रहती हैं, एंड एस्पिरेशन इज अ जॉय फॉर एवर, अ पोजेशन एज सॉलिड एज अ लैंडेड स्टेट. Now, a fortune which we can never exhaust. तो कभी भी वो खत्म नहीं हो सकता. एस्पिरेशंस तो रहेंगी, हमेशा ही हम कुछ ना कुछ एस्पायर करते रहेंगे. तो इसीलिए ये हमारा एक मोटिव बन जाता है, लाइफ का एक पर्पस हमारी लाइफ को देता है ये एस्पायर करना. सो दैट इज व्हाट ही इज डिस्क्राइबिंग इन दिस एसे. एल्डोराडो नॉट जस्ट मनी का, नॉट जस्ट फाइनेंस का, बट ऑल्सो ऑफ एस्पिरेशंस, ऑफ आवर डिजायर्स, जो भी हमारी इच्छाएं हैं. उसमें फिर ये वर्ड्स भी यूज करते हैं, जैसे डिजायर एंड क्यूरियोसिटी आर द टू आइज थ्रू विच वन सीज द वर्ल्ड इन द मोस्ट एन्चेंटेड कलर्स. तो हमारे अंदर जब तक डिजायर है, जब तक क्यूरियोसिटी है, ये दो वैल्यूज हैं, तब तक हम वर्ल्ड को ऐसे देखेंगे जैसे वो एकदम नया है, जैसे एकदम समथिंग अमेजिंग इज गोइंग टू हैपन टू अस. सो दैट इज व्हाट हैपेंस. बट ही आल्सो साइट्स एग्जांपल्स वेयर दिस हैज टर्न्ड फ्यूटाइल, वेयर दिस हैज नॉट लेड टू हैप्पी endings, and those are the examples that he gives. तो जो वो एग्जाम्पल्स देते हैं वो ये देते हैं, जैसे एक बार एक यंग मैन की स्टोरी बताते हैं जिसने थॉमस कार्लाइल के सारे वर्क्स पढ़ लिए. थॉमस कार्लाइल की पूरी उन्होंने वर्क्स कलेक्शन को पूरा कंप्लीट कर लिया. उसके बाद उसने जो एक्सक्लेमेशन किया वो क्या था, व्हाट क्राइड द यंग फेलो इन कंस्टर्नेशन, इज देयर नो मोर कार्लाइल, एम आई लेफ्ट टू द डेली पेपर्स. नाउ ये एक सेलिब्रेशन है ऑफ द राइटर कि कार्लाइल इतना अच्छा प्रोज, इतना अच्छा उनका राइटिंग स्टाइल है कि आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एंटायर लिस्ट ऑफ वर्क्स, वो यंग मैन जो है वो डिसअपॉइंट हो जाता है कि अब क्या मैं डेली न्यूज़पेपर पढूं, मतलब आई डोंट हैव एनी ग्रेट थिंग्स लेफ्ट टू रीड. सो ये एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट है कि जब आप वो डिजायर अचीव कर लेते हैं जो आप चाहते हैं, तो उसके बाद फिर जो है लाइफ एम्प्टी लगने लगती है. इसी तरह जब गिबन ने डिक्लाइन एंड फॉल जो बुक है उनकी ऑफ द रोमन एम्पायर, उसको उन्होंने जब कंप्लीट किया तो उन्होंने भी उसको थोड़े मोमेंट्स ऑफ जॉय उनको मिले, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिला. उसके बाद फिर वही मेलेंकली मूड हो गया कि अब आगे क्या करें, व्हाट इज लेफ्ट टू डू अहेड. फिर वो एंड ऑफ द एसे में ये कहते हैं कि देयर इज ओनली वन विश रियलाइजेबल ऑन अर्थ, ओनली वन थिंग दैट कैन बी परफेक्टली अटेन्ड, एंड दैट इज डेथ. दैट इज डेथ को आप एक बार अचीव कर लेते हैं तो फिर उसके बाद कुछ भी और अचीव करना नहीं बचता, कोई डिजायर नहीं बचती, कोई क्यूरियोसिटी नहीं बचती, कुछ भी एक्सेप्ट डेथ जो है वो सस्टेन नहीं रहता, वो परमानेंट नहीं रहता. तो इसीलिए हम लोग जितना ज़्यादा भी डिज़ायर कर लें, जितना ज़्यादा भी हम लोग एस्पायर कर लें, बट वो एल्डोराडो जो है वो हमेशा हमसे दूर ही रहेगा. हमेशा हम कुछ ना कुछ एस्पायर करके और आगे बढ़ना चाहेंगे जब तक डेथ हम लोग को कंज्यूम नहीं कर लेती. सो दैट इज द मेन थीम ऑफ दिस एसे. इसमें भी वही सब क्वेश्चंस हो सकते हैं, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट अबाउट, फिर पर्टिकुलरिटीज के बारे में हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है ऐसे में जो कंटेंट्स हैं उनके बारे में हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कब पब्लिश हुआ, ऑल दैट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एसे, ऑन द प्लेजर ऑफ हेटिंग बाय विलियम हस्टेड. नाउ इस एसे में वो क्या कहता है कि हम एज ह्यूमन बीइंग्स हेट करना इज वन इमोशन जो हमारे अंदर हमेशा ट्रू रहता है. हम हमेशा और सारे इमोशंस जो हैं वो फेड हो सकते हैं, लव फेड हो सकता है, पिटी फेड हो सकता है, एंगर फेड हो सकता है, सब कुछ फेड हो सकता है, बट हेट्रेड इज इमॉर्टल, हेट्रेड इज नेवर एंडिंग. सो वो ये कहते हैं, जैसे एग्जांपल्स देकर शुरू करते हैं, जैसे एक स्पाइडर है उसको एग्जांपल देते हैं कि वो उनके रूम में एक स्पाइडर है जो कोई भी उनको हार्म नहीं कर रहा है किसी तरह से, और अपने वे पे वो जा रहा है, बाहर निकल रहा है, एंड इनके मन में एक डिस्गस्ट आता है कि उसको प्रेस करके
किल कर दें, मार दें। नाउ ये डिस्गस्ट जो है वो कहते हैं कि हम लोग ने सीखी हुई है, हम ट्रेंड हैं इसमें बचपन से, और इवन बिफोर अस जनरेशंस हैव लर्नड दिस हेट्रेड फॉर अ डिफरेंट लुकिंग एनिमल, अ डिफरेंट लुकिंग क्रीचर, ठीक है, जो थोड़ा सा ऑकवर्ड, थोड़ा सा wretched टाइप लगता है, तो उसके लिए वी हैव दैट काइंड ऑफ हेट्रेड एंड वी थिंक अबाउट किलिंग इट, और वी हैव दैट डिस्गस्ट जो कि जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जिसके लिए कोई भी वो नहीं, बट हम देख कर ही उसकी साइड जो है हम शिवर करने लगते हैं, वी ट्राई टू किल इट, वी ट्राई टू इरेडिकेट इट। बट ये यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं, ही सेज दैट ही लिफ्ट्स अप द कारपेट एंड लेट्स इट गो, ठीक है, उनको उसको चला जाने देते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि एक करीब another century it will take us to read some more fine writing, ताकि हम ये जो prejudice है उस creature के लिए उससे हम क्योर हो सकें। लेकिन नेचर में ऐसे एंटीपैथीज बहुत हैं, वो ये कहते हैं विदाउट समथिंग टू हेट वी शुड लूज द वेरी स्प्रिंग ऑफ थॉट एंड एक्शन। तो जब तक हम कुछ भी हेट करने के लिए हमारे पास नहीं होगा, वी विल नॉट हैव अ रियल पर्पस इन लाइफ, लाइफ जो है वो स्टैग्नेंट हो जाएगी। सो दैट इज व्हाट ही सेज। उसके बाद ये कहता है कि ये प्रिंसिपल हर जगह काम करता है, एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे को मारते हैं, फिर जो भी चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन वो क्या करते हैं, वो भी फ्लाइज को खेल खेल में मारते हैं, फिर एवरीवन रीड्स अबाउट द एक्सीडेंट्स एंड ऑफेंसेस इन अ न्यूज़पेपर एज अ क्रीम ऑफ जेस्ट, पास टाइम की तरह चाय पीते हुए एक्सीडेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, या कुछ भी बुरा हो गया तो उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। दैट इज हाउ पीपल डू। एंड गाय फॉक्स का इसमें मेटाफर यूज किया जाता है। गाय फॉक्स का इमेज है जिसको ब्रिटेन में हर साल जलाया जाता है, एक एफिजी बना के उसको जलाया जाता है। क्यों? बिकॉज वी हैव दैट फिगर इन फ्रंट ऑफ अस जिसको हम हेट कर सकते हैं, जिसको हमारी कलेक्टिव हेट्रेड हम जिसकी तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने उसमें देख सकते हैं, हम रावण को हर बार जलाते हैं, बट रावण को हम हमेशा जलाते हैं, बट हम अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको हम कभी भी टारगेट नहीं कर सकते। सो दैट इज या नहीं करते। सो दैट इज द रीजन हियर कि हम खुद को कभी भी चैलेंज या खुद के जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको कभी भी हम चैलेंज नहीं करेंगे। हम एक एक्सटर्नल हेट्रेड पॉइंट ढूंढ लेंगे, कोई भी एक इमेज ढूंढ लेंगे जिसके अगेंस्ट हम अपना सारा एंगर डायरेक्ट कर देंगे, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन डायरेक्ट कर देंगे। तो इसी तरह से है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कुछ भी और ऐसा हो जाए, बुक्स हो चाहे ओल्ड फ्रेंडशिप्स हो, सबसे हम धीरे धीरे बोर हो जाते हैं। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स वो देते हैं। चाहे कितने भी अच्छे फ्रेंड्स, कितनी भी अच्छी कंपनीज हो, हम उससे धीरे धीरे फैमिलियरिटी जितनी बढ़ती जाती है उतना ही हमारा कंटेम्प्ट भी बढ़ता है और हम उनसे धीरे धीरे कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आते जाते हैं। ठीक है, तो हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते। अगेन वाई? बिकॉज वी हैव दोज ईगोज अमंग अस। फिर उसके बाद बुक्स, अच्छी बुक्स, कितनी भी अच्छी बुक्स हो, लेकिन हम उनसे धीरे धीरे बोर्ड हो जाते हैं। और फिर ये भी साइट करते हैं अपने ऐसे में कि हर जनरेशन के साथ ऐसा होता है कि जो करंट ट्रैश है, जो पॉपुलर लिटरेचर है, वो काफी पॉपुलर रहता है, वेराज जो क्लासिक्स हैं जैसे पैराडाइज लॉस्ट हो गया, उनको कोई उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस आउटसाइड एकेडमिक्स लोग नहीं जानते उनके बारे में या नहीं उनको पढ़ते हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट का कंपैरिजन इसमें दिखाते हैं लव ऑफ द एंजल्स जो मिस्टर मोर की है। उन दोनों में ऑब्वियसली कोई कंपैरिजन नहीं है। पैराडाइज लॉस्ट इज फार सुपीरियर, फार अच्छा वर्क है। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो घर में लोग हैं वो बैठ के, मैंने ये भी सुना कि वेटिंग मेट्स जो है आपस में डिस्कशन कर रही थी कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है। तो इसी तरह से, या टॉम जोन्स है, अगर उसको टॉम जोन्स को मैं आज पढ़ता हूँ, हेनरी फील्डिंग की टॉम जोन्स, तो मुझे हो सकता है आज मेरे लिए वो प्रेजेंट में वो सफिशिएंट ना हो या ज्यादा सूटेबल ना हो मेरे प्रेजेंट के लिए। तो हो सकता है मैं इतना डिस्गस्टेड हो जाऊं कि मैं उसको उठा के फायर में फेंक दूं। तो दैट इज द काइंड ऑफ डिस्गस्ट वी हैव फॉर थिंग्स एंड दैट इज व्हाट ही सेज। ये जो हेट्रेड है वो एक हमारा इंडीड एक प्लेजरेबल एक इमोशन है जो कि हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, पेन इज बिटर स्वीट, वांट्स वैरायटी एंड स्पिरिट। पेन जो है वो बार बार आपको, वो पेन, वो जो दुख है कोई, तो वो आपको हमेशा नहीं इफेक्ट कर सकता, धीरे धीरे फेड हो जाता है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल दैट ही गिव्स ऑफ इज लव। लव टर्न्स विद अ लिटिल इंडल्जेंस टू इंडिफरेंस और डिस्गस्ट। धीरे धीरे अगर आप बहुत ज्यादा लव किसी से भी करेंगे, कोई भी आपके फैमिली मेंबर्स हो, जनरल में भी लव हो, तो धीरे धीरे उसमें इंडिफरेंस आ जाता है, आप फिक्र करना छोड़ देते हैं, आप डिस्गस्टेड भी हो जाते हैं कभी कभी। हेट्रेड अलोन इज इमॉर्टल। हेट्रेड हमेशा रहेगी, हेट्रेड कभी भी फेड नहीं हो सकती। बस ये एग्जाम्पल के साथ वो आगे बढ़ के ये भी कहते हैं कि हमें धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, हमें धीरे धीरे अपने आप को कल्टिवेट करना पड़ेगा माइंड को,
जिससे हम इस हेट्रेड की टेंडेंसी से आगे बढ़ सकें। सो इसके लिए हमें खुद कॉन्शियस एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तब जाके ये जो प्लेजर है हेटिंग का वो धीरे धीरे